Hello everyone. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. मैं दिखाई दे रही Good हूँ? morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good Yes, morning, ma'am. ma'am. तुम सबको Good नहीं morning, दिखाई ma'am. दे रहे? नहा धो के आए हो ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अपनी शक्लें दिखाओ. अच्छा, एक क्या? ओके. सौरभ जैन. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. और कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं तुम्हारे यहाँ? 23. 23, ma'am. 23. Yes, ma'am. ओके. इसमें ये प्रोविजन है कि मैं आपकी अटेंडेंस कभी भी डाउनलोड कर सकती हूँ. ठीक है? तो आप लोग छोड़ के मत जाना सेशन. वैसे भी हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पढ़ना ही है. तो आप ही लोग का नुकसान है अगर ऐसा करोगे तो जी आप मैम. लोग रहना क्लास में. नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर कभी तो. अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो आई विल शेयर इट. ओके. तो आई एम स्टार्टिंग माय सेकंड लेक्चर. तुम्हें सीपीसी से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. म्यूट कर लो तुम लोग. सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को. आप लोग अपना अपना म्यूट करो बेटा. So today we are starting our lecture 2. Okay, in this lecture we will have a view about main contributors to classical mechanics. Actually, these are the contributors to mechanics, not the classical mechanics. Classical name was coined very late. There are so many physicists, astronomers, mathematicians, philosophers who contributed to this field. I have mentioned only some of them, like Aristotle. You can see that Aristotle given the credit to lay its origin, and he was in 384 to 322 BC. So you can say that its origin is very old. I mean, it is an aged science having the age of at least 2350 years. Then Archimedes. There was Kepler, who contributed for mechanics. Galileo Galilei. Then Isaac Newton. Joseph Louis Lagrange. From Newton onward, you can say that
the contributors to classical mechanics have started. Lagrange, then Euler, Simon Laplace, Henry Poincare, Sir William Hamilton, Carl Jacobi, and there are many more in between these contributors as well as after these contributors, but I have mentioned only some of them. And in my discussion, I will discuss about the contribution of some of them which are marked red in this presentation, like Aristotle, Archimedes, Kepler, Galileo Galilei, and Sir Isaac Newton. Because actually, when you are studying this course of classical mechanics, you will start your mechanics from Newton, and then you go up to Jacobi. You will study the mechanics, the approach adopted by Newton. You will not exactly study the approach adopted by Newton because that you have already studied, but you will study the approach by Lagrange, then approach by Hamilton and Carl Hamilton-Jacobi theory also. So I will mention some of the contributions of these mathematicians. First of all, Aristotle is given the credit for credit to contribute towards mechanics. So you can say that Greeks were the first who contributed in this field. Many of you may know that Aristotle was the pupil of Plato. Plato was his teacher, and he himself, that means Aristotle, was the teacher of Alexander the Great, who tried to conquer the whole world. So he was a teacher of Alexander the Great. Here you are seeing that Aristotle was a Greek philosopher and a polymath. It simply means that he was not only a man of philosophy. He was not only a man of mathematics. He was a man of so many sciences. He contributed to rhetoric, physics, biology, psychology, zoology, anatomy, ethics, politics, mathematics. So you can see he was a man of so many sciences. He was a learned man. But the main thing is that his work was based on observations and logics. He did not provide any theory. Rather, his work was based on the experiences, based on the observations. So he believed that whatever you observe, whatever your mind think, whatever your sensory or your sensations, or you can say whatever your senses perceive and predict, is the philosophy. And that philosophy he also used for his science, that means for mechanics also. Basically, he said that if any object is moving, then it is moving because of something else. तो आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि जैसे न्यूटन ने कहा, उसने कहा कि यदि कोई मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रेस्ट पर है तो रेस्ट करेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. कुछ उसका एक छोटा सा इशारा है उस तरफ ही. या ये कहिए कि न्यूटन ने वहां से थोड़ी गाइडेंस ली. एरिस्टोटल ने कहा कि if any object is moving, then it is moving because of something else. Okay. तो यहाँ पे वो ये कहता है कि मूवमेंट किसी चीज की वजह से है. अब वो मूवमेंट रहेगा, किसी स्पीड से रहेगा, इस सब के बारे में उसने बात नहीं की. और एक बात उसने ये कही कि सपोज some object is A which is moving because of B. Then he said that B may move because of some C, C may move because of some D, but this chain is not infinite. This chain of movement of objects is not infinite. He said that there will be some D, E, F, G, H or any object in the space X
which will cause the movement of some previous or some connected object, but it will not move itself. तो उसने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव तो कराएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट खुद भी मूव करे. तो ये चेन जो मूवमेंट की है ये इनफाइनाइट नहीं है. ये उसने ऑब्जर्वेशन दिया एरिस्टोटल ने. और दूसरा उसने ये भी कहा कि जो ये मूवमेंट है, दिस इज नॉट कंसीवेबल फ्रॉम अ डिस्टेंस. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव तभी कराएगा, मोशन तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो उसके टच में आएगा. So this was another philosophy given by Aristotle, that the movement is possible only when one object is in contact with the other, because he himself is saying that one is moving because of other and one is moving because of other, because that other is in contact of the one. Okay, and movement is not going on. There may be some point in the space, or there may be some object in the space which is causing the motion to someone, but it itself is not moving. So it is another theory, another philosophy given by Aristotle. Further, he said that he was not a believer of vacuum, but still he said if there is some vacuum, then he said if there is some vacuum, then a body which is at rest will remain at rest, and if it is in motion, it will remain in motion. So you can say it is somewhat the first law given by the Newton, but Newton does not give the law in vacuum only, but this was the philosophy of Aristotle regarding the vacuum, though he was not a believer of vacuum, any vacuum. Further contribution is that he presented a distinction between the natural convection and forced convection, or you can say he gave the idea about the natural motion and forced motion, because up to that time there was not a theory of convection. So natural motion or forced motion में क्या difference है ये उसने दिया. You may also go through what is natural motion and what is forced motion. Another philosophy about mechanics was that he said that whatever observations are given by Aristotle, it seems as if he was saying that force is proportional, speed is proportional to force and inversely proportional to resistance. If I say that suppose it is a body of mass m1 and it is another body of mass m2 such that m2 is greater than m1. So it seems as if he was saying this, that velocity v is proportional to mass and inversely proportional to resistance. So you can say suppose this body is falling through a liquid. Suppose here is some liquid and this body, now this mass, is falling through this fluid. Then he said that velocity will be proportional to the mass of this object, but it will be inversely proportional to the density of the fluid, because density will produce the resistance. So you can say that the falling of the body was depending upon the mass, and he seems to say that a body which is of greater mass will fall with greater velocity. It was his philosophy, though this philosophy was later rejected, but initially Aristotle said the same. He also believed that that heavenly bodies like the stars, the planets, are made of a substance which are different from the substance of which the rocks are framed. So he gave a distinction between the heavenly bodies and the terrestrial bodies. जो अर्थली बॉडीज हैं और जो हेवनली बॉडीज हैं, उसमें उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रॉक्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, मून का कॉन्स्टिट्यूशन, प्लैनेट्स का, स्टार्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लैनेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट है. ये एक थ्योरी फिलोसफी दी एरिस्टोटल ने. तो जो उसके ऑब्जर्वेशंस थे वो सारे लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थे. उसमें कोई कंट्रोल्ड मेजरेबल
टेक्निक्स कोई उसने ऐसी नहीं दी, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था. देन केम द आर्किमिडीज. Archimedes again was in 287 BC to 212 BC. So he's also assumed to be a big contributor towards mechanics. Archimedes applied the mathematics to the physical phenomena. So he was first who applied mathematics to the field of physics. If anybody of you know, Archimedes gave the method of exhaustion. आप लोग देखते होंगे जब एरिया अंडर अ कर्व निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लेते हैं ना, इस तरह से हमने लिया, ये कोई कर्व है और हमें यहाँ पर इसका एरिया बताना है, इस पोर्शन का एरिया बताना है, ये बताना है. तो हम क्या करते हैं कि इस पोर्शन में एक स्ट्रिप डालते हैं, ऐसे एक स्ट्रिप डालते हैं और कहते हैं कि ये अगर dx है और ये अगर y है तो हम कहते हैं कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, और ये जो भी लिमिट्स हैं, सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज x2, देन x1 to x2. So what does this integral is saying? Is this integral is saying that you are adding all possible strips, you are adding the area of all possible strips which may be drawn in this portion, और उन सबको तुम जोड़ रहे हो. इंटीग्रेशन का मतलब इसलिए बिकॉज कंटिन्यूटी है यहाँ पर, तो कंटिन्यूस फंक्शन है आपका, उस कंटिन्यूस फंक्शन पर अप्लाई करने के लिए, एडिशन करने के लिए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया. ये जो मेथड ऑफ एग्जॉशन है, दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ एग्जॉशन, दैट इज टू फिट the maximum number of polymers, the maximum polynomials inside the figure, inside the area. ये जो मेथड ऑफ एग्जॉशन है, दिस वाज प्रोवाइडेड बाय आर्किमिडीज, जो आज हम यूज करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर्म में, ये आर्किमिडीज ने दिया था और उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मॉडर्न कैलकुलस एंड एनालिसिस. Now, besides it, there are 10 treatises by Archimedes, out of which 7 are available. And in those 7 treatises, I have mentioned just the 5 on the sphere and cylinder, on conoids and spheroids, measurement of the circle, method of exhaustion, on the equilibrium of planes or center of gravity of planes. Actually, last one is the combination of the 2 books. So in these treatises, he talked about the area, he talked about the solid of revolutions which are produced due to conic sections. He talked about the spirals. So he contributed a lot towards mechanics. Geometrical descriptions were given a lot by Archimedes. And he also gave that the ratio of the circumference and the diameter of a circle lies between 310 raised to the power 310 by 17 to 3:1/7. अगर आप उसका निकालो तो 310 by 17 और 3:1/7 के बीच में जो उसने कहा कि ये रेशियो लाई करेगा, दिस इज नियर अबाउट पाई. तो जो आज रिजल्ट हम यूज करते हैं वो उसके काफी अप्रोक्सीमेटली काफी उसके पास है. ये भी ऑब्जर्वेशन आर्किमिडीज ने दिया था क्योंकि वो मैथमेटिक्स यूज करने लगा था इन थ्योरीज के लिए, और उसने ज्योमेट्री का, मैकेनिक्स का एक कॉम्बिनेशन बना करके एक रिजल्ट दिया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो आज भी आप यूज करते हैं 4/3πr³. दिस वाज आल्सो गिवन बाय आर्किमिडीज. He also devised the machines, he also devised the engines of wars, because Romans invaded his city, and at that time it is said that because he invented some machines, or you can say he invented the war machines in which there was the convex mirrors which grab the sun heat and then by its reflection those reflect the sun heat, and it was causing the fire to the enemy's ships.
तो 3 साल तक जो रोमन की सेनाएं हैं वो एक खाड़ी में खड़ी रहीं, क्योंकि आर्किमिडीज ने इस तरीके का एक कॉन्वेक्स मिरर का इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस उसने इन्वेंट किया था. सो ही वॉज अ बिग मैन, अ मैन ऑफ बिग थॉट्स. और अगर आपने सुना होगा तो एक बड़ी फेमस स्टोरी है आर्किमिडीज के बारे में. हाँ, एक आपने इसका जो बुएंसी प्रिंसिपल है वो तो बहुत फेमस है ही आर्किमिडीज का. एक बड़ी फेमस स्टोरी है इसके बारे में, जब एक यूरेका आर्किमिडीज से जोड़ा जाता है. आप लोगों में से किसी को अगर पता हो कि व्हाट इज दिस स्टोरी विच इज फेमस बाय यूरेका, तो अनम्यूट करके बताओ आप में से कोई, अगर आप में से पता हो आर्किमिडीज की स्टोरी related to यूरेका. Anybody of you? आप लोग अपना अपना अनम्यूट करके नो बोलो. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. No, ma'am. So I'm telling the story. ऐसा हुआ कि ये जहाँ पर था उसका जो राजा था उसके लिए एक मुकुट बनाया गया, और उससे ये कहा गया कि ये प्योर गोल्ड का मुकुट है. ठीक है. अब उसको ऐसे ही लगा कि भाई कैसे जांचा जाए इसको कि ये प्योर गोल्ड है, क्या ऐसी डिवाइस हो. तो he called Archimedes and he said Archimedes to tell whether there is some mixing of silver in it or not. So Archimedes' process of thinking started. So it is said that once he was taking a bath and there he saw the overflowing of water from the bucket, and seeing that overflowing of water from the bucket he got an idea कि हाँ कैसे जांचा जा सकता है. उसको ये आइडिया आया कि यदि हम एक बकेट में पानी रखते हैं, किसी भी वेसल में पानी रखते हैं और पूरा भर देते हैं उसको, और उसके बाद उसके अंदर मुकुट रख देते हैं, तो नेचुरली ओवरफ्लो होगा, कुछ पानी बाहर आएगा. यही उसका बुएंसी प्रिंसिपल था. तो जो पानी ओवरफ्लो करेगा अगर उसका वजन और मुकुट का वजन बराबर होगा, इट सिंपली मीन्स दैट इज मेड ऑफ गोल्ड. And if the overflow the weight of the overflowed water is more than the weight of the ground, then there is some mixing in it. तब उसमें जरूर कुछ सिल्वर है. तो ये जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आया, तो it is said that he started shouting and he came out of his bathroom in the naked position and he shouted on the streets saying Eureka. I mean, I found it. It means I found it. तो इट इज द स्टोरी कि वो चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते ही वो राजा के पास गया बताने कि ऐसे ऐसे इसको देखा जा सकता है. सो इट इज वेरी फेमस स्टोरी रिगार्डिंग आर्किमिडीज. So if you go through his biography or go through his contribution towards mechanics, you will find many more contributions. I am just mentioning some of them. So it is all about Archimedes. He also discovered the lever principle, and he said that if you give me a place to stand, I can even move the earth, because he gave a theory that with the help of a lever of long arm you can even move an object of massive weight. कितना भी भारी कोई ऑब्जेक्ट हो, वो ये कहता था कि डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, अपॉन द लेंथ ऑफ द लीवर आर्म. अगर लेंथ उसकी ज्यादा है तो आप बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकते हो. मतलब बड़े से बड़ा मीन्स हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकते हो. इसीलिए उसने कहा था यू जस्ट गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई कैन इवन मूव द अर्थ. तो ये उसके बारे में बड़ी एक फेमस स्टोरी कहलाई जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किमिडीज in brief, not in detail. Next comes the Johannes Kepler. Kepler was a German astronomer, and basically he wrote a book, Astromia Nova. And here in this book he provided three very famous laws known as three laws of Kepler. And as I mentioned in my first lecture, the three laws tell us about the orbit which the planets describe. That was the first law, which says that
an elliptical orbit is described by the planets revolving the sun. In second law, he tells about the in second law, he told about the area of the section described in the same intervals. And in third law, he again gave the geometrical description of the motion of object around the sun. So these were very famous 3 laws. And basically, if you go into the deepness of these laws tell about many concepts. Like his law predict that if a planet is closer to sun, it will move with great speed. As close as it is to sun, its speed will be higher, and it will describe an elliptical path in shortest time. So the consequences of these 3 laws are very important. He was basically a man of logics. He was basically a man of theory. He did not believe in the traditions. जब तक केपलर का टाइम था तो वहाँ क्या था कि जो चर्च था वो बहुत स्ट्रांग था, और चर्च की अपनी कुछ मान्यताएं होती थी, और वो चर्च जो मान्यताएं दे देता था उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था. तो उस समय तक जो चर्च जो भी बातें कह देता था वो किसी साइंटिस्ट को भी वही फॉलो करनी पड़ती थी, और उसके अगेंस्ट वो कोई थ्योरी दे नहीं सकता था. तो केपलर ने वो सब रिजेक्ट किया, और उसने कहा कि जो भी रिजल्ट है वो वेरीफाई होने चाहिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. तो वो ट्रेडिशंस पे बिलीव नहीं करता था. इस तरह के और भी मैथमेटिशियंस या फिजिसिस्ट हैं, और यहाँ तक भी हुआ कि उनको सजा दे दी गई कि वो क्यों चर्च की सेंस के अगेंस्ट बोलते हैं. लेकिन केपलर ने जो थ्योरीज दी थी वो सब लॉजिक बेस्ड थी, और वो एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड थी उसकी थ्योरीज. और उसी की थ्योरीज से ये पता चल सकता है कि कोई अगर कोई आपका स्पेस क्राफ्ट है तो वो स्पेस क्राफ्ट सन तक जाने में कितना टाइम लगाएगा. जो हेली कॉमेट है वो कितनी दूर तक जाएगा. ये सारे इसके 3 लॉज ये सारी बातें प्रेडिक्ट करते हैं. तो काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है केपलर को एज अ कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स मैकेनिक्स. Then comes Galileo Galilei. Just a minute. Yes. Then comes the Galileo Galilei. Actually, Galilei was the founder of classical mechanics. जो नाम एक क्लासिकल मैकेनिक्स कॉइन हुआ वो हुआ क्लासिकल नाम कॉइन, लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी को अप्लाई किया, यानी कि जो हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो सारी वो कुछ गैलीलियो के काम में रिफ्लेक्ट होती हैं. तो उसको कहा जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. गैलीली, he was an Italian astronomer, and therefore he is called the father of modern physics, father of scientific methods, father of astronomy, father of modern science. And Galileo described the terrestrial mechanics. केपलर ने जो डिस्क्राइब किया that was about the motion of planets around the sun. So he described the celestial mechanics. That means the mechanics related to the heavenly bodies. And Galileo described the terrestrial mechanics, that is, he described the mechanics related to the bodies on Earth. He wrote a book, Mechanics, where he introduced the concept of force. Newton is given the credit to use the force in mechanics, but this was introduced first time by Galileo. In terms of force, he was the first. और उन्होंने कहा इसके बारे में रेजिस्टेंस के फॉर्म में, लेकिन वो क्लियरली उसी तरह से नहीं कहा. उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग, बट व्हाट इज दैट, उस तरह से नहीं कहा. तो
कहने का मतलब ये कि जो फोर्स का कंसेप्ट है वो गैलीलियो ने दिया पहले, और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन भी गैलीलियो ने दिया, और उसने ये बताया कि हम जो सरफेस के, अर्थ के सरफेस के करीब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करते हैं. इट वाज द थ्योरी ऑफ गैलीलियो हु सेड दैट व्हाई वी डोंट फॉल ऑफ द अर्थ. हम सब अर्थ पर हैं लेकिन हम गिर क्यों नहीं जाते उस पे से. अर्थ तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसके बावजूद भी हम गिरते क्यों नहीं है. तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन जो है वो गैलीलियो ने दिया था, जिससे उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम क्यों नहीं गिरते हैं. और गैलीलियो ने पहली बार ये बताया कि जुपिटर के 4 मून हैं. इसमें ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, आप लोग को ये ओवरलैप कर रहा होगा, मैं इसको ठीक करके भेज दूंगी. उसने ये इन्वेंट किया था कि देयर आर 4 मून्स, और नासा ने अपना एक मिशन भेजा था, अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था नासा ने, दैट वाज आल्सो नेम्ड आफ्टर गैलीलियो. 1990 में एक उसने जो मिशन भेजा था दैट वाज नेम्ड, जुपिटर पे जो भेजा था वो भी गैलीलियो के नाम से ही उसका नाम पड़ा. तो ही वाज अ बिग मैन. एरिस्टोटल ने तो ये कहा कि जो बॉडी फॉल करती हैं उनकी जो स्पीड है वो उनके मास पे डिपेंड करती है. जो हैवी बॉडी है वो जल्दी ज़्यादा स्पीड से गिरेगी, जो लाइट बॉडी है वो कम स्पीड से गिरेगी. लेकिन गैलीलियो ने कहा ऐसा नहीं है, ये मास इंडिपेंडेंट है और बॉडीज मास के हिसाब से नहीं गिरेंगी. ये थ्योरी जो थी वो गैलीलियो ने दी, और उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ही टोल्ड दैट ऑल बॉडीज विल फॉल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन व्हाटएवर बी देयर मास. सो एक और थ्योरी उसने दी कि जो प्रोजेक्टाइल है, जैसे कोई एयर में आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, अगर किसी एंगल से फेंकते हैं तो इट विल डिस्क्राइब अ प्रोजेक्टाइल. ये थ्योरी भी गैलीलियो ने ही दी थी. पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार गैलीलियो ने दिया था, और उसने बताया था कि जो आर्क होता है, जो आर्क बनता है, उस आर्क और जो पेंडुलम टाइम लेता है एक आर्क को डिस्क्राइब करने में, तो आर्क के इंडिपेंडेंट होता है वो टाइम. दिस थ्योरी वाज आल्सो गिवन बाय गैलीलियो. उसने बताया कि मून पर धब्बे हैं, सन में स्पॉट्स हैं, ये सारी इन्वेंशंस गैलीलियो की ही हैं. और उस समय तक कॉपरनिकस की एक थ्योरी थी जिसमें ये माना जाता था कि कॉपरनिकस ये कहता था कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं. लेकिन जो क्रिश्चियन थ्योरी थी वो नहीं थी ऐसी. क्रिश्चियन थ्योरी ये कहती थी कि नहीं, सारे प्लैनेट्स, सन जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. तो कॉपरनिकस को इसलिए अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था. लेकिन गैलीलियो अगेन सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ कॉपरनिकस, और इतना ज़्यादा विरोध हुआ उसका गैलीलियो का कि उसको उसके घर में ही 9 साल के लिए जेल बना दी गई उसके घर, और 9 साल के लिए उसको बंदी बना दिया गया, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ क्रिश्चियंस. तो वो अपने ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा स्टिक करते थे. इस तरह से जो गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है मैकेनिक्स के लिए, और क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत भी वहीं से हुई. इसमें लास्ट में मैंने लिखा है ना, डिस्कार्टेड जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस. जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि सेंटर इज अर्थ and all planets are moving around the earth, even the sun is moving around the earth. But he supported the heliocentric hypothesis of Copernicus, which says that no, all planets move around the sun. Next comes the Isaac Newton. Newton was an Englishman, English physicist and mathematician. Actually, Newton unified the theory of Galileo and the theory of Kepler. Kepler gave the theory of celestial bodies, and Galileo gave the theory of terrestrial bodies. एक ने हेवन से रिलेटेड बॉडीज के बारे में बात की, दूसरे ने अर्थ से रिलेटेड बॉडीज के बारे में बात की. न्यूटन ने दोनों को यूनिफाई किया. तो न्यूटन का काम बहुत बड़ा माना जाता है.
उसने यूनिफाइड थ्योरी दी, इससे पहले कोई यूनिफाइड थ्योरी दे नहीं पाया था, और उसने कहा कि द सेम प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बोथ। तो एक यूनिफाइड थ्योरी उसने प्रेजेंट की विच वाज एप्लीकेबल टू बोथ सेलेस्टियल एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल बॉडीज। उसकी जो एक किताब है, ये मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट पेज लगाया है विकिपीडिया से लेके, इसको प्रिंसिपिया नाम से ये बहुत फेमस किताब है, 1687 में ये किताब आई थी। इस किताब में उसने यूनिफाइड थ्योरी दी है और जो 3 लॉज ऑफ मोशन है वो दिए हैं इस किताब में। मेरी वो आ रही है क्या, पिक आ रही है, देख पा रहे हो मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके। यहीं पर न्यूटन ने 3 लॉज अपने दिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी म्यूट कर लो तुम लोग। डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोग की तरफ से। अभी आगे से ना एक जने की ड्यूटी लगाएंगे जो केवल ऑन करेगा और बात करेगा। तुम सारे लोग कर लेते हो फिर काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है। खैर, ये जो उसकी किताब थी प्रिंसिपिया, उसमें उसने 3 लॉज दिए, लॉज ऑफ मोशन जो बहुत फेमस है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि हाउ द ऑब्जेक्ट्स मूव, व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज कॉजिंग दैट मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोग जानते हो, मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ कि in an inertial frame, if a body is at rest, it will remain at rest, and if it is in motion, it will move with the same velocity. The interesting thing is that up to the time of Newton, there was no concept of vectors. It was introduced in 1901 by Gibbs. Newton was in 17th century, and the concept of vector came in 19th century. तो एट दैट टाइम ही डिड नॉट यूज वेक्टर नोटेशन और सम वेक्टर, कोई ऐसी उसकी परिभाषा नहीं थी वेक्टर की। उसने केवल स्पीड के बारे में बात की कि सेम स्पीड से मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलती है तो। सो दिस वाज फर्स्ट लॉ। Basically, this was the basic or the base of all other laws given by Newton. Second was the law of causality. That means in this law, he told us what is the cause that a body either moves or comes to rest. फोर्स का कंसेप्ट पहले भी आ चुका था, लेकिन उस फोर्स के कंसेप्ट को मोशन से कैसे जोड़ा, दिस वाज न्यूटन। एंड ही सेड दैट total force exerted on a body are equal to the rate of change of momentum, because he gave the law in mathematical form, F is equal to ma. I can write this a as change in velocity, and then mass is constant for this body, so I can write it like this, which is d dt. Now mass into velocity means momentum, so it is momentum, and finally it is rate of change of momentum. So he said that total forces impressed on a body are equal to the rate of change of momentum. So this was the first time when force was defined in terms of 2 measurable quantities. One was mass and second was acceleration. And this was the time when a new branch of mechanics developed, and that was dynamics. तो जो न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है वो डायनामिक्स के लिए है। डायनामिक्स तभी शुरू हुआ जब न्यूटन के ये लॉज आने शुरू हुए। He gave the dynamical equations of motion in inertial frame. Now जो न्यूटन ने लॉ दिया, सेकेंड लॉ ही है, उस लॉ में फोर्स की बात की गई है। तो फोर्स का मतलब ये हुआ कि
जो भी फोर्सेस किसी बॉडी पर वर्क कर रही हैं उसकी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप डिस्क्राइब करोगे उसके मोशन को। और फोर्सेस जो होती हैं वो आज के ज़माने में तो हमने उन्हें डिफाइन कर दिया कि बॉडी फोर्सेस हैं, सरफेस फोर्सेस हैं। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और वहीं इस फोर्सेस के कंसेप्ट से उसका तीसरा लॉ आया, विच इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, जिसमें वो कहता है कि इफ देयर इज एन एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि जब एक एक्शन हुआ और उस एक्शन की वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हुआ, इट सिंपली मीन्स दैट if a force is applied in this direction then there is a force which is applied in this direction of the same strength. तो फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में आ गई। अगर इक्विलिब्रियम में आ गई तो मोशन कैसे शुरू हुआ, ट्रिगरिंग कैसे शुरू हुई, कोई बता सकता है? कोई एक्शन फिर कैसे हो जाता है? आप में से किसी को पता हो? जिसको पता हो वो केवल अनम्यूट करे। चलिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम हमेशा ये तो कहते हैं कि यदि कोई एक्शन हुआ तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हुआ, लेकिन हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, हम कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सपोज इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स लगी कि एक्शन हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगी जब रिएक्शन हुआ, तो वो जो रिएक्शन होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन यही होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे एक बॉल है, ये कोई बॉल है, ये बॉल इस बॉल से टकराई, इससे टकराई, टकराने के बाद इस बॉल ने भी मूव करना शुरू कर दिया, इस बॉल ने भी मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बॉल एक रिएक्शन देगी और वो रिएक्शन ऐसे कुछ चलेगा, ऐसे। ठीक है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है, लाइन ऑफ एक्शन अलग हो सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और दोनों की डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन पैरेलल होती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। और इसी वजह से जो कोई एक्शन स्टार्ट होता है वो होता है। आप ये देखो कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्शन कैसे स्टार्ट हो जाता है, फिर ट्रिगरिंग कैसे हो जाती है। तो जो ट्रिगरिंग होती है वो तो आज भी मिस्टीरियस है कि ट्रिगर कैसे हो जाती है कोई चीज़, जैसे कोई फोर्स दी जाती है, स्पॉन्टेनियस एक्शन है ये। ट्रिगर जो है उतना ही अभी मालूम है कि दिस इज एन स्पॉन्टेनियस एक्शन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और नेचुरली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई तो वो बॉडी ने मूव किया। जैसे कि कोई गन फायर किया जाता है तो आपने देखा होगा कि जो फायरिंग करता है उसके हाथ पे, उसके शोल्डर पर एक उसके एक फोर्स आती है, उस फोर्स की वजह से उसका हाथ पीछे को हिलता है, बैकवर्ड मोशन होता है। तो वो वही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। उसमें जितनी फोर्स उसका कंधा या उसका हाथ महसूस करता है वो फोर्स लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी की वजह से। और इसीलिए जो जितनी फोर्स से आप बुलेट पर फोर्स लगाते हो तो वो क्या करती है कि वो बैरल के थ्रू जाती है, रिवर्स एक्शन होता है, और रिवर्स एक्शन में जो फोर्स लगाई जाती है दैट इज इक्वल टू द रिकॉयल ऑफ द गन एंड दैट एक्ट्स ऑन द शोल्डर और द हैंड ऑफ द पर्सन हु इज शूटिंग। तो ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। कभी कभी बहुत छोटे होते हैं तब बच्चों को जब ये समझाया जाता है, बहुत छोटे बच्चों को भी थर्ड लॉ बताया जाता है क्वेश्चंस के थ्रू, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप ये भी उन्हें बताएं या आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होती, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती है जिसी की वजह से एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड लॉ एंड दिस वाज द लॉ बिकॉज ऑफ विच द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम came into picture. Through some mathematics I'll tell you how we'll say so. Suppose there are two particles, a particle 1 and particle 2. Particle 1 is exerting a force on particle 1 and that force is suppose F12. Now Newton's law say this F12, what is this F12? F12 is equal to, by second law, F12 is equal to
mass m1 and d dt of v1 velocity. Okay. Now, by Newton's third law, there will be a reaction and the same amount of force will be exerted by 2 on 1, but Newton's law says that F12 will be equal to minus F21. 1-2 means the force exerted by first particle, one particle onto 2, and 2-1 means the force exerted by second particle on first particle due to the law of reciprocity. And what is this F21? F21 is mass of the second object into acceleration, or I can say change in velocity. So this is second law, this is second law. Now this is F12 plus F21 is equal to 0, or put the values m1 d dt of v1 plus m2 d dt of v2 is equal to 0. Now it is d dt of, that means derivative of m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0. Derivative of, what is m1 v1? Mass into velocity. This is the definition of momentum. So this is the momentum of first particle, and m2 v2 momentum of second particle. Its derivative is 0. Sum of the momentum. There is no change in the sum of the momentum. P1 plus P2 is equal to constant. So it is the law of conservation of momentum. Momentum will not change. P1 is the momentum due to first particle, P2 is the momentum due to second particle, and sum of the momentum is constant. So this is the law of conservation of momentum. Actually, P1, P2 are representing the linear momentum. So this conservation law is for linear motion. So it is called the conservation law of linear momentum. यहाँ पे जो ये मैंने बात बताई थी आपको कि सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा, ये बात न्यूटन के बाद में डिस्कवर हुई। न्यूटन के समय में उसने लाइन ऑफ एक्शन की कोई बात नहीं की थी। उसने जो थ्योरी दी, जो मैथमेटिक्स दिया, उस थ्योरी में, उस मैथमेटिक्स में ये तो वो कहता था एक्शन और रिएक्शन होगा, लेकिन ये डिस्कवर हुआ कि जब ये थ्योरी आई कि फिर ट्रिगरिंग कैसे हो जाती है, एक्शन कैसे स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद ये थ्योरी डेवलप हुई कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होता है। न्यूटन ने इसके बारे में बात नहीं की थी। And then he gave the fourth law, which is called the law of gravitation. Actually जो फर्स्ट 3 लॉज थे वो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए इनसफिशिएंट रहे, तो उसने एक और लॉ दिया which is known as law of gravitation. और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया कि फोर्सेस एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं, जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि मोशन होता है, जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट आती है या स्पीड चेंज हो जाती है। तो वो वर्क कैसे करती हैं, फोर्स कैसी फोर्स है वो जो काम करती हैं। तो उसने बताया कि जो 2 पार्टिकल होते हैं, कोई भी 2 पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स, सपोज आई एम सेइंग दिस इज द फोर्स F12, तो उसने कहा दिस F12 इज इक्वल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द 2 एलिमेंट and square of the distance between the 2. So he said it is proportional. So what was taken as the constant of proportionality? That was G. That was G. G was the gravitation force. G was the force of attraction between the two elements. तो ये उसने बताया कि फाइनली कि F, अगर मैं F12 लिखूँ तो F12 is equal to G m1 m2 upon
r12 स्क्वायर। तो उसने ये बताया कि जैसे जैसे ये जो लॉ है ये साफ साफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच की घटेगी वैसे वैसे जो ग्रेविटी फोर्स है उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वो फोर्स घट जाएगी। तो ये जो लॉ था ये उसने क्या किया कि जो केपलर्स के लॉ थे प्लैनेटरी मोशन के उनकी हेल्प से डेराइव किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहाँ उसने हेल्प ली केपलर की थ्योरी की, इसलिए केपलर का कंट्रीब्यूशन ग्रेट हो गया। और जो कुल मिला के जो न्यूटन के 3 लॉज थे और ये चौथा लॉ था ग्रेविटेशन का, उसने मिला करके एक नई फिजिक्स को पैदा किया एंड दैट फिजिक्स इज नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही हुआ कि उसने यूनिफाई किया थ्योरी को और ये बताया कि सिंगल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द सेलेस्टियल बॉडीज एज वेल एज टू द टेरेस्ट्रियल बॉडीज। तो अब ये न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो उसके बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। जो मैकेनिक्स में इंडियन कंट्रीब्यूटर्स थे अभी आई थिंक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अभी नेक्स्ट आई थिंक राहुल की क्लास का टाइम हो रहा होगा, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली जो न्यूटन ने मैकेनिक्स दी उसको कोई ये कह सकता है कि आज की डेट में वो फिर कैसे रेलेवेंट है। तो अब ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप इसे ढूंढेंगे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स इन मॉडर्न डेज और कहाँ तक एप्लीकेबल है वो। क्योंकि जो नई जनरेशन होती है वो बैक जनरेशन से मोटिवेटेड होती है। जैसे इसने केपलर की थ्योरी को लिया यूनिफाइड थ्योरी देने के लिए, इसी तरह से न्यूटन की थ्योरी को कैसे यूज़ किया गया। और दूसरा आप लोग को इस बारे में देखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आप इसके ऊपर नोट बनाएंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि जब लिमिटेशंस आई न्यूटोनियन मैकेनिक्स की उसके बाद ही कोई नई मैकेनिक्स डेवलप हुई, क्वांटम मैकेनिक्स आई, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आई। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, इन दो के ऊपर आप एक नोट बनाइए और मुझे विद इन 2 days आप मेल के थ्रू भेजेंगे। वैसे आप इस पे भी दे सकते हैं, ये जो हम जिस ऐप पे इस समय क्लास ले रहे हैं यहाँ पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसको सर्च कर लेती हूँ, हम इसी पे करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसी में एक पूरा रिकॉर्ड आता रहेगा। तो आप 2 चीज़ों पर लिखेंगे, रेलेवेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स इन मॉडर्न डेज and what are the limitations of Newtonian mechanics. So thank you all. Excuse me, ma'am. We will start our lecture. Excuse me, ma'am. We will meet tomorrow. Thank you. Excuse me, ma'am. Ma'am. Hello. 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 Hello, ma'am.